Hello everyone. Today we will do CENIC school exam for class 6 2022. So we'll start from question number 26, mathematics portion we will cover. So in question number 26, question is which one of the following is the incorrect option? So incorrect option आपको find out करना है. आपको area given है 240. So if you go with the option number 1, ठीक है? What will be the area for rectangle? It's L into B, that is length into breadth. So if you go with the option A, 19.2 into 12.5, you will get 240. Okay? In option B, you will also get 240. But in option number C, that is 54 into 5, you will get 270. So this will be the incorrect option. So for 26, C option is the correct option. Okay? Question number 27, convert 15 and 1 by 25. Okay, so it was very easy. 15 is complete and 1 by 25 is always 0.4. Okay, so 15.04 is the answer. That is your option number B. Okay, 28. A webinar has 3 intervals of 5 minutes each. What is the total duration of the intervals in seconds? Okay, so 5 minutes duration है. ठीक है, and there are 3 intervals. So total आपकी कितनी हुई? टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ इंटरवल का? 15 मिनट्स. ठीक है, आपको 15 मिनट्स को सेकंड में करना है. सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. सो हाउ मेनी सेकंड्स विल बी देयर इन 15 मिनट्स? 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू 15 into 60, that is 900 seconds. So your option C is the correct answer. ठीक है, next is question number 29. Select the value of m and n. See, there is question is 127 into 15 and blank into 15 plus blank into 15. What you can do is find out 15 as common and what you will get m plus n. Okay, so this way a 15 and 15 you will get it cancelled. So what is this? 127 left. So in option number D, okay, you will get 127 in option number D only. 100 plus 15 in option A is 115. आपको 127 चाहिए. ठीक है, so in option D you will get 100 plus 27 into 15. ठीक है, so D option is correct here for question number 29. Okay, this is your question number 30, not 29. This is question number 30. ठीक है, 29 we missed out. Okay, what is the weight of the 2 dozen biscuit if each biscuit weight 400 grams? Question number 29 is 2 dozen biscuits का आपको weight निकालना है. 1 biscuit का weight आपको पता है. 1 biscuit is equals to 4 grams. 2 dozen means 24 biscuits. So 24 biscuits का weight निकालना है. 24 into 4. So कितना weight आया? 96 grams is the answer. Okay, so 96 grams. That is your option number D is the answer. ठीक है. Next is question number 31. In 31, which of the following are arranged in the descending order? Descending order आपको find out करना है. ठीक है. So for question number 31, descending order आप सबको points में करके check कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज डिनोमिनेटर चेक करते हो. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 32, सिमेट्री फाइंड आउट करनी है. देखो, फर्स्ट इज ए. आप ए को अगर कट करोगे और फिर से उसको फोल्ड करोगे, यू विल गेट द सेम पैटर्न. फर्स्ट द सेकंड फिगर आल्सो, बट दैट थर्ड फिगर दैट इज एन, अगर आप उसको कट करके फिर से फोल्ड करोगे, यू विल नॉट गेट द सेम. ठीक है, so for question number 32, C is the correct answer. Question 33, in 5 6 3 6 7 2 5 6 3 6 7 2. ठीक है, hundreds and thousands के प्लेस में जो डिजिट है. ठीक है, this will be 600 and this will be 60. तो इनके बीच में ये इसका कितना टाइम्स है? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 100 टाइम्स. ठीक है, 100 टाइम्स. This means option number B is the correct answer. Question number 34.
1 2 8 4 pens are to be packed in a carton with 150 pens. Okay, how many cartons will be needed? So it was very easy. आपको simply क्या करना था, इसको divide 128400 divided by 150. ठीक है. So for question number 33rd, correct option will be 856 pens. That is your option A. 856 option A. Question 35. Find the area of the shaded portion. ठीक है, आपके पास एक फिगर दी हुई है. ठीक है, उसके बीच में आपको एक रेक्टेंगल बना दिया है और एक स्क्वायर बना दिया है. तो पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, क्या इसकी फिगर्स में आपको दिया हुआ है, साइड लेंथ इज 25 and breadth is 9. ठीक है, so L into B that is 25 into 9, you will get 225 centimeter square. ठीक है, let it be figure 1 and let it be figure 2. So for figure 1 आपके पास कितना दिया हुआ है, 4 into 7. So L into B करोगे, 4 into 7 is 28 centimeter square for figure 1, and figure 2 you have the side 6 centimeter. So that is square, side into side 36 centimeter. What you will do for the shaded region? शेडेड रीजन आपका कैसे आएगा, जब आप कंप्लीट रेक्टेंगल में से दैट इज 225 में से जब आप माइनस कर दोगे 28 एंड 36 को. सो फ्रॉम 225 आप माइनस कर दो 40 64 and you will get 161 centimeter square. That is option A. Option A is the correct answer for 33. ठीक है. Next is 36th. Sorry, 36th. For 36 choose the figure. 36 ये आपका इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आजकल मैथमेटिक्स में कभी आए नहीं है. ठीक है, बट चलो इट वाज वेरी इजी. और 36 सी इज द ऑप्शन. कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक पैटर्न चेक करना था. ठीक है, आप सर्कल को मूव होते हुए देख लो. पहले वो लेफ्ट शिफ्ट हुआ, देन वो डाउनवर्ड्स हुआ, तो नेक्स्ट वो कहां होगा. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 37 what will the price of the 7 chairs if the price of one chair is 7642.45. ठीक है, this is the price of the one chair. अगर आपको 7 chairs का प्राइस निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई. तो बाय मल्टीप्लाइंग आपके पास इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी 5349.7.15. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. 38 फिल इन द ब्लैंक्स. आपके पास रोमन काउंटिंग भी दिया हुआ है. ठीक है, सी 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 एक्स सी प्लस एल आई एक्स. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 390 प्लस 59. आपके पास क्या आ जाएगा, 349. अब आप 349 को रोमन काउंटिंग में कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट 340, सॉरी इट्स नॉट 349, दिस इज 449. I'm so sorry. 449 को आप कैसे लिखोगे रोमन काउंटिंग में. So the correct option here will be option B, that is CDXLIX. Question 39. In a particular year, total students आपको दिए हुए हैं. ठीक है, total students are 7643872. आपको boys दे दिए हैं total 4237602. आपको क्या find out करनी है, number of girls. Okay, you have to find the number of boys and girls are given. ठीक है, आप इसको माइनस कर लो. आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 0726043. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40. Shreya has 32 red pens and 56 blue pens. She wants to make pack of equal number of pens out of them in such a way that each pack has pens of one color. ठीक है, in this case you will find the HCF of 32 and 56. ठीक है, and the answer will be 8. ठीक है, so B option is the correct answer. आपको HCF find out कर लेना. ठीक है. Question number 41. Question 41. I am a 5-digit number. I have 9 at my tens place. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Question number 41. ठीक है.
I have 9 at my tens place, so once tens 9 आ गया, ठीक है. The digit at the 10,000 place is 3 less than the digit at the tens place. This is 10,000, 3 less than this means 9 minus 3, ठीक है. Next, the digit at the 100 place is half the value of the digits at the 10,000 place. 100 इसका half मतलब ये आ गया 3. Digit at the 1,000 place is double the digit at the ones place. अब जो यहाँ पे digit है उसका डबल यहाँ पर है, ठीक है. तो आप देखो ऑप्शन में 639 आना चाहिए, है ना. तो 639. So this will be option number D, that is 4. यहाँ पे 4 आएगा और 4 का डबल हो गया 8. So correct option will be D. बाकी कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं हो पाएगा. 42. ये आपका इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है. यहाँ पे आपका आपसे वाटर इमेज पूछी गई है सर्च की, ठीक है. सो इन केस ऑफ सर्च यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी. क्वेश्चन 43. आपको क्या फाइंड आउट करना है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर है, ये भी बहुत इजी था. यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, दैट इज 10529, 12049, 12509 एंड 15249, ठीक है. क्वेश्चन 44. What should be subtracted from 3 millions to get 165,498? आप 3 millions में से कितना लेस करोगे? तो लिखो 3 millions, ठीक है. इसमें से माइनस कर दो 1765498, ठीक है. आप इसको माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2054321. That is your option B. B is the correct option for question number 44. Question 45. An athlete finishes 400 meter race in 48 seconds. How many minutes he spent in running if he has 5 times on the same track? ठीक है. वो 400 मीटर रेस को 48 सेकंड्स में करता है. अब उसने 5 राउंड्स लेने हैं, मतलब 48 into 5 हो गया, ठीक है ना. 5 उसको 1 राउंड को वो 48 सेकंड्स में कर रहा है. 5 राउंड्स को वो कितने में करेगा? 240 सेकंड्स, है ना. अब उसने आपसे पूछा क्या? हाउ मेनी मिनट्स. उसने मिनट्स में आपसे आंसर पूछा है. तो मिनट्स में करने के आपने इसको क्या कर दिया 60 से. तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 4 मिनट्स. दैट इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Question number 46, again an intelligence based question. Select the next figure. तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा था आपका, ठीक है. आपको वही ध्यान रखना था. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. राउंड ऑफ करना है आपको 7348561 को हंड्रेड्स में. तो आप 561 को चेक करोगे, ठीक है. और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 7348600. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. ट्राइंगल्स प्लस ट्राइंगल प्लस पाई ले लेते हैं इसको, ठीक है. तो ट्राइंगल प्लस पाई इज इक्वल टू 420. नेक्स्ट इज पाई माइनस ट्राइंगल इज इक्वल टू 90. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई. दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इसको सॉल्व कर लो अगर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? p माइनस 90 इज इक्वल टू ट्राइंगल. ये आपके पास ट्राइंगल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना. आप क्या करोगे? पुट t इज इक्वल टू p माइनस 90 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. अब आपने यहाँ पे पुट करा तो ये कितना आ गया? p माइनस 90 प्लस p मतलब p माइनस 90 प्लस p इज इक्वल टू 420. तो p प्लस p इज 3p minus 90 minus 90 180 420. So 3p is equals to 600. p is equals to 600 upon 3. That is p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 200. That is option number 2, option B, ठीक है. करेक्ट. नेक्स्ट इज 49. 76,04,083 is written as. Question 49. आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको वर्ड्स में दिया हुआ था, ठीक है. नंबर्स में लिखना था, तो ये बहुत इजी था. एंड इन दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 7604083. क्वेश्चन नंबर 50. प्रिशा वेट्स 42 kg. 42 kg प्रिशा का वेट है. कायरा का वेट है 39.5. इनको ऐड किया, ठीक है, 0.5. ये कितना आ गया? 81.5 किलोग्राम. लेकिन आपको ऑप्शन ग्राम्स में दिए हुए हैं, आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लोगे
So 81,500 grams. That is option number C is the correct option. ठीक है? So these are the 25 questions. Thanks for watching. Good evening, guys. Today was the exam of Scenic School, and we will discuss the solutions of the maths paper. And question number 51 to 75 are here. I'm sharing the screen. So one by one हम इसके solution देख लेते हैं कि हमारा जो correct answers हैं वो क्या है. तो 51 question is find the area of the shaded part of the figure. आपको क्या करना है? Shaded part of the figure का area find out करना है. तो हमारे पास दिस इज अ लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल. तो होल फिगर क्या है? हमारे पास रेक्टेंगल है. तो हम क्या कर देंगे बेटा, अगर रेक्टेंगल में से हम अनशेडेड पोर्शन का एरिया माइनस कर दें, सो वी कैन गेट द शेडेड पोर्शन एरिया. सो वी हैव टू फाइंड द शेडेड पोर्शन एरिया. तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ द फिगर माइनस एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन. ठीक है, तो अनशेडेड पोर्शन का हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा. तो लेट मी सॉल्व इट ऑन द सॉल्यूशन स्लाइड. तो डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, कितनी है फुल फिगर की? 25 एंड 9 सेंटीमीटर और 4 एंड 7 एंड 6 सेंटीमीटर. तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे? एज वी नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है. तो लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास? लेंथ गिवन है 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर. तो 25 इंटू 9 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्या कर देंगे हम? रेक्टेंगल के एरिया में से अनशेडेड पोर्शन को माइनस कर देंगे. तो ए माइनस द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन. तो बेटा अनशेडेड पोर्शन की डायमेंशंस हमारे पास गिवन है और रेक्टेंगल की डायमेंशंस गिवन थी कितनी? 25 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर. और हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 25 इंटू 9 सेंटीमीटर की हेल्प से एंड माइनस द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन. तो बेटा अनशेडेड पोर्शन की डायमेंशंस हमारे पास गिवन है कितनी? 4 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर था. और सेकेंड हमारे पास गिवन थी 6 का हमारे पास क्या गिवन है बेटा? स्क्वायर गिवन है. दिस लाइन शोज दैट द ऑल साइड्स आर इक्वल. ये जो लाइंस दे रखी है उसमें ये क्या बताती है कि सारे हमारे पास जो साइड्स हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी. तो माइनस कर देंगे इसको. स्क्वायर, तो स्क्वायर की हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है कितना? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो स्क्वायर की एरिया कितना गिवन है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर गिवन है. तो वी कैन डू इट एज 6 मल्टीप्लाई बाय 6. तो 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9 5 का 45 कैरी 4 एंड 9 टू द 18 और 4 कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. माइनस इसमें से हम अनशेडेड पोर्शन को माइनस कर रहे हैं. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस कर देंगे इसको 36 को. तो 36 एंड 28 कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 6 14 4 कैरी 1 2 एंड 1 3 3 और 1 3 and 3 6. तो 225 माइनस 64. तो 225 में से हम 64 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 5 minus 4 is equal to 1 and 12 minus 6 is equal to 6 and this will be equal to 1. So the correct answer will be equal to 161 centimeter square. तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा. ठीक है, तो क्लियर. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 161 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स जिन भी बच्चों ने ए ऑप्शन करेक्ट किया है दैट इज राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. आपको क्या बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. तो स्टूडेंट दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर एंड दिस इज द साइन ऑफ लेस. बूलियन अलजेब्रा के साइन है, हम इनके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं. तो 2/5 बेटा किसके इक्वल होता है? 0.5 के 4 के इक्वल लिखा है. दिस इज करेक्ट. एंड 1.147 ग्रेटर होता है किससे? 1.147 ग्रेटर है किससे? 1.039 से. तो इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट 039 is less and 147 is greater. So this is also correct. And the third option is 5.862 is less than 5.9. तो ये हमारा क्या है? ये भी सही है. ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है. इनकरेक्ट मीन्स आपको रॉन्ग आंसर बताना है.
So the last option is saying that the 3.21 is greater than 2.22. So beta, it is clear from the counting that 22 is greater than 21. From here it is showing that 21 means 21 is greater than 22. So this will be the wrong option. So answer will be option D. 52 का आंसर आपका क्या आ जाएगा? D आएगा. So let us move to the next question. Question number 53. ये क्या था हमारे पास? What should be subtract from the 3 million to get that 176,45498? आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना होगा? What we subtract from 3 million to get this number? तो हम सपोज कर लेते हैं let x should be subtracted. Let x should be subtracted. तो 3 मिलियन में से बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? x को. एंड 3 मिलियन, मिलियन का मैं आपको बता दूं तो 1 मिलियन जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6. तो 3 के बाद हमारे को कितने जीरोस प्लेस करनी होंगी? 6 जीरोस. तो 1 2 3 4 5 6 माइनस x इज इक्वल टू 176,5498. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 million minus 1765498. तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको. 3 million 1 2 3 and 1 2 3 6 zeros are there and subtract कर देंगे इसको x को और हमें चाहिए क्या वहां से? And statement was the 1765498. तो बेटा हमने क्या बोला? x सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो x को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे एंड 1765498 विल कम ऑन द अदर साइड एंड इट विल बिकम नेगेटिव. तो ये नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास. माइनस कर देंगे इसको 1765498 को. तो बेटा 10 minus 2 is equal 10 minus 8 is equal to 2 and here it will become 9. And 9 minus 9 is equal to 1. So here is also 9. 9 minus 4 5. 9 minus 5 4. 9 minus 6 is equal to 3 and 9 minus 7 is equal to 2. And this will be equal to 2. 2 minus 1 is equal to 1. So the right answer will be equal to, so 9 minus 1 sorry is here will be equal to 0 because यहाँ पे 9 आ जाएगा. So the real answer will be equal to 1 2 3 4 5 0 2. तो लेट मी चेक कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. So this is the option, correct option. 1 2 3 4 5 0 2. B option is the correct. So B is the right answer of question number 53. So let us move to the next question. Question number 54. If the classes for the senior students start every day at 8:35 a.m. and end at 1:45 p.m. क्या बोला कि कुछ बच्चों की क्लासेस जो है मॉर्निंग में 8:35 o'clock स्टार्ट हो जाती हैं और एंड होती है कितने? 1:45 पे. आपको क्या बताना है? फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस. की उनकी जो क्लास है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए उनकी क्लास चलती है. तो बेटा टाइम ड्यूरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम कर लेंगे. So duration of the time will end time minus starting time. तो स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे किसमें से? एंडिंग टाइम. जो क्लास कंप्लीट कितने बजे होती थी? 1:45 p.m. पे और स्टार्ट कितने बजे होती थी बेटा? 8:30 से. तो हम क्या कर लेंगे? इनके बीच का टाइम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो 8:35 पे स्टार्ट हो गई थी क्लास. तो 8:35 से लेके हम 9 o'clock का सेट कर लेंगे. पहले हमारे पास कितने आ जाएंगे? 25 मिनट्स. एंड देन उसके बाद 9 से लेके 10 तक के 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स प्लस उसके बाद फिर अगेन करेंगे हम 10 to 11 that is also equal to 60 minutes plus 11 to 12 60 minutes and 12 to 1 that is also equal to 60 minutes and 1 to 1:45. बेटा 1 से लेके 1:45 तक क्लास चली तो 45 मिनट्स आ गया.
तो 1 से 2 के बीच में जब का टाइम हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 45 मिनट्स. We will add all these 60 plus 60 plus 60 plus 60 that will be equal to 240 and 45 minutes plus 25 minutes. So 5 plus 5 is equal to 10. Carry 1, 4 and 1, 5, 5 and 4, 9, 9 and 2, 11, carry 1. So 2 and 1, 3. So 3, 10 minutes. 310 minutes का जो है उनकी क्लास का ड्यूरेशन टाइम रहने वाला है. ठीक है. सो ऑप्शन चेक कर लेंगे तो राइट आंसर जो है इसका 310 मिनट्स हो जाएगा. So I think the B option is here. So 310 minutes is the right answer. Option B. So clear. The next question is question number 55. Identifying the angle created by the minute hand on the hour hand and the hour hand at 2:30 p.m. तो क्या कह रहा है कि आपको 2:30 p.m. पे क्लॉक के अंदर एंगल फाइंड आउट करना है. द एंगल विल बी एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंड राइट. तो बेटा 2:30 पे एंगल फाइंड आउट करना है. सो आवर आर एंड विल बी ऑन द 2 एंड बिटवीन 2 एंड 3. जो हमारी आर हैंड होगी वो किसके बीच में होगी? 2 और 3 के बीच में होगी. इन बिटवीन 2 एंड 3 एंड द मिनट हैंड विल बी ऑन 6 because the time is 2:30 p.m. I am also giving you a formula of finding the angles between the clock. So angle find out करना है तो angle is equal to hour into 30 degree minus minute multiplied by 11/2. ठीक है. तो सपोज कीजिए बेटा आपको 2:30 पे एंगल फाइंड आउट करना है. सो आवर्स कितने हमारे 2 एंड मिनट्स आर 30. तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 2 into 6:30 माइनस मिनट कितने हैं हमारे पास 30 into 11/2. कटिंग कर देंगे हम 30 को 2 से कट हो जाएगा ये 2 into 15 आ जाएगा. 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 165 एंड 32 जो होता है हमारा 60 degree. And from this formula if your value is negative so also take the angle positive. ठीक है. अगर माइनस आता है तो उसको इग्नोर करना होता है. इसमें एंगल फाइंड आउट करते हैं. So answer will be equal to minus 105 degree. So we will take the angle positive and this will be equal to 105 degree. तो बेटा 105 डिग्री क्या है हमारा? राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है. तो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में बता दूं. एक्यूट एंगल आर दोज एंगल्स व्हिच आर लेस देन 90 डिग्री and obtuse angle are those which are greater than 90 degree and straight angle is of 180 degree and right angle is of 90 degree. So 2:30 p.m. पे जो हमारा एंगल बन रहा है that is equal to 105 degree. तो 105 डिग्री क्या होगा हमारा? greater than 90 degree. So B option will be the right answer, that is obtuse. Clear? So 55 question B will be the right answer. Obtuse. The next question is select the next figures in the pattern. बेटा क्या होता है इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है आपको उसको फाइंड आउट करना है. तो in the first figure you can see that the figure is going up. ठीक है. And in the second figure the figure is going in the left direction and in the third this is going in the downward direction. So now we go to the right. बेटा टॉप का जो हमारा रिवर्स होता है that is equal to bottom and left का रिवर्स हो जाएगा right. तो right में हमारा कौन सा फिगर जा रहा है? that is option 3. B, C option will be clear. So this is the correct answer. क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं इसके अंदर हम तो हमारी फिगर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज हियर. राउंडिंग ऑफ द 7 3 4 8 5 6 1 टू नियरेस्ट 100. आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 करना है. तो बेटा जब भी नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी चेक द टेंस प्लेस डिजिट. हम किसको चेक करते हैं? टेंस प्लेस डिजिट को चेक करते हैं. इफ आवर टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर हमारी टेंस प्लेस वाली डिजिट 5 से बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं 1 टू द 100 प्लेस. So similarly we will do in this question and we will add 1 to this and rest of the digits are put as 0. So the correct answer will be equal to 7 3 4 8. तो बेटा 5 में हम 1 ऐड करेंगे. We will add 5 1 to the 5. It will become 6 and put all the remaining numbers as 0. So this is the round off to 100. So B option is the correct answer. That is 7 3 4 8 6 0 0. Clear?
The question paper was very easy. These are the questions all questions we have done in the class. The next question is choose a figure that will continue the series in the given figure. इसमें भी बेटा हम क्या कर लेंगे, डायरेक्शन चेक कर लेंगे, and this direction is going to the फर्स्ट हाफ कुछ क्या चेक करना है, लेफ्ट एरो की जो डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दिस इज नाउ इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन टू अप, एंड देन इट्स पोजीशन इज राइट, एंड देन इट्स पोजीशन इज डाउनवर्ड. सो हमारे सर्कल की जो पोजीशन बन रही है दैट इज लाइक दिस, like this, and like this, and now it will like this. So here is not present any circle, here is not. So option C and D will be the may be the correct answers. तो हमारा ऑप्शन C और D जो है करेक्ट हो सकता है, बट आपको बेटा इसकी डायमंड शेप की जो पोजीशन है इसको भी चेक करना है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे डायमंड शेप की पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आएगा, C इज द राइट आंसर, बिकॉज इसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है, फिर राइट हैंड साइड पे इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, थोड़ा सा नीचे आया है ये डाउनवर्ड, एंड देन लेफ्ट, एंड देन अप, एंड देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट. सो दिस सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. The next question, question number 59 is what is the fraction that the sum of the shaded region be present. आपको क्या बताना है कि shaded region क्या fraction show कर रही है. तो बेटा shaded region का हमारा निकालना होता है तो क्या करेंगे, टोटल को नीचे रखते हैं और shaded portion को ऊपर, है ना. तो it will become that the fraction क्या होती है हमारी numerator upon denominator. So we will write the shaded portion in the numerator and in the denominator we will take whole the total values को नीचे ले लेंगे. So हम काउंट आउट कर लेंगे, फर्स्ट सर्कल में हमारे पास कितने शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो बेटा 7 आ जाएंगे हमारे पास, एंड 1 2 3 4 5 आर देयर. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें शेडेड पोर्शन का ही फाइंड आउट करना था. And in the first figure, total streaks, total sectors in which the circle is divided that are 12. Clear? So the correct answer will be equal to 8 upon 12, and in the next figures we count करते हैं 1 2 3 4 5. 5 are the shaded. So we have to find out the shaded region. It will be equal to 8 upon 12 plus 5 upon 12. So we will take the LCM of the denominators. The LCM will be equal to 12. So 8 plus 5 is equal to 13. 13 is divided by 12. We will convert it into the mixed fraction. 12 ones are 12 and remaining will be equal to 1. So 1 into 1 by 12 is the right answer. Option D is the right answer of question number 59. We have to find the shaded region. So the next question is question number 60. Which one of the following figure is not symmetrical along the dotted line? आपको क्या बताना है कि कौन जो है सिमेट्री फॉर्म नहीं कर रहा है along the dotted line. तो बेटा ये जो फिगर है हमारे पास ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो डॉटेड लाइन है दैट इज आल्सो गोइंग इनटू द मूव अलोंग विद द फिगर. फिगर के अलोंग ही चल रही है, एंड सेकंड वाले फिगर में देखिए अलोंग विद द फिगर चल रही है, एंड लास्ट डी वाले ऑप्शन में अगर फिगर राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी राइट हैंड साइड पे जा रही है. बट इन द ऑप्शन सी यू कैन सी दैट the figure is going up and down and the line of symmetry is different. So option C will be the right answer. This is going not symmetrical. So not symmetrical line comes जाएगी हमारे पास C option. This will be like this. So 60 question and option C is the correct answer. So question number 61 is here. 128,400 1000. Oh sorry, 1,28,000. Sorry, 128,40. 1 2 3 4 5 6 1,28,400 pens are there. So this is not showing correctly. So I'm dictating you here 128,400 pens are there to be packed in the cartons of
150 पेन्स। आपको क्या करना है, हमारे पास कुछ पेन्स हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, कार्टून्स में पैक करना है। और वो कार्टून में पैक करने के लिए हमारे को क्या करना है, वन कार्टून, ईच कार्टून कंटेन 150 पेन्स. So you have to count how many cartoons will be needed. How many cartoons will be needed? So cartoons needed are total number of pens and divided by one cartoon में कितने पेन आ जाते हैं, 150. So divide कर देंगे इसको 128400 divide by 150. So we will divide by 15 and 15 से divide करेंगे बेटा इसको हम. 12840 को divide करना है किससे, 15 से. तो 15 8 जा 120 and this will be equal to 12 5 हो 15 5 जा हमारे पास कितना होता है 75 and 9 will be remainder here and 9 and 0 will become 90. So 856 cartoons will be needed to pack that pens. ठीक है, एक कार्टून है, हम लोग पेन्स पर तो अभी कितने कार्टून चाहिए होंगे, 856 कार्टून्स आर नीडेड. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 61. So very easy question was that. Question number 62 is here. Which one of the following is an equivalent fraction of 5 upon 7? The same question we have done in our class. The equivalent fraction is that in which we can divide by the same number. Equivalent fraction क्या होती है? We can multiply by the same number or we can divide by the same number. The fraction remains same. हमने fraction का रूल पढ़ा है, तो this is the same and हम कट करके देख लेंगे कौन सी fraction हमारी 5 upon 7 के इक्वल आ रही है. So 15 upon 21 को हम 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15 and 3 7 जा 50 और 3 7 जा 21. और क्वेश्चन इज सेइंग दैट नोट इक्विवेलेंट पूछा बेटा इसने. तो 45 upon 56, तो इसको कट करके देख लेंगे हम. तो 9 5 जा हमारे पास 45 होता है एंड 56 तो नहीं आएगा उससे. 25 upon 35 देखिए 5 5 जब 25 5 7 जा ये भी आ रही है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन ए भी आ रहा है हमारे पास. डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं 10 upon 14. सो अगेन हम इसको 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10 2 7 जा 14 एंड डी ऑप्शन से भी बेटा कट करके हमारे पास क्या आ रहा है 5 by 7. सो आई थिंक ऑप्शन बी इज हियर which is not giving the fraction of 5 by 7. So B option is the right answer, that is 45 upon 56, because there is no common number between them and we cannot cut the fraction. Next question, question number 63 is here. And question number 63 says that what is the weight of 2 dozen biscuits if each biscuit weight 4 gram? वो क्या कह रहा है हमारे पास, what is the weight of the 2 dozen biscuits? आपको 2 dozen biscuits का weight find out करना है. if each biscuit weighs 4 gram, मतलब आपको 1 biscuit का weight given है कितना, 4 gram. So as we all know that 1 dozen is equal to 12 units. हमारे 1 dozen में कितने units होते हैं, 12 units होते हैं. तो आपको 2 dozen biscuits में कितना हो जाएंगे, 2 dozen will be equal to 2 multiplied by 12, that is 24. 24 biscuits will be there and weight of 1 biscuit is equal to 4 gram. weight of 1 biscuit कितना है हमारे पास, 4 gram है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा 1 dozen is equal to 12 units. So 2 dozen is equal to 24 units. तो 2 dozen में हमारे पास कितने आ जाएंगे, 24 बिस्किट्स आ जाएंगे. तो वेट ऑफ 1 बिस्किट कितना दे रखा है हमारे पास, गिवन है 4 ग्राम. सो वेट ऑफ 24 बिस्किट्स विल बी इक्वल टू 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जिससे 4 से, दैट विल बी इक्वल टू 96 ग्राम. So 96 gram is the right answer. So we will check the options and option D is here, that is 96 gram. So D option is the right answer of question number 63. So let us move to the next question. Question number 64. If the cost of fencing 1 meter is 215 rupees 215. आप उस दिन फेंसिंग वाला क्वेश्चन में क्लास में भी डिक्टेट किया था बेटा कि फेंसिंग जो होती है दैट इज अराउंड अ पेरीमीटर. फेंसिंग जो होती है पार्क की आउटसाइड यानी बाउंड्री जो होती है, तो बाउंड्री से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बाउंड्री से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पार्क and we will multiply the perimeter by 215 because 1 meter की cost आपको given है. So find the cost of fencing a park with length is equal to 45 meter and breadth is equal to 23 meter.
So length of path is equal to 45 meter and breadth of path is equal to 23 meter. So we will find the perimeter from here. The perimeter of the path will be equal to फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास 45 एंड ब्रेथ कितनी गिवन है 23. सो वी विल ऐड 45 एंड 23. दिस विल बी इक्वल टू 68 and 2 multiplied by 68 will be equal to 136 meter. तो 136 मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा. आपका पेरीमीटर कितना आ गया 136 मीटर. तो बेटा कोस्ट ऑफ फेंसिंग जो थी 1 मीटर की कितनी थी. पेरीमीटर हमने कितना फाइंड आउट किया है यहाँ से 136 मीटर. तो वी कैन राइट हियर कोस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर को फेंस करवाने का हमारे पास जो खर्चा आता है वो कितना आता है 215 रुपीज आता है. और आपको किसको फेंस करवाना है 136 मीटर को फेंस करवाना है. सो दिस विल बी इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई बाय 136. तो कितने रुपीज का एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास 29,240 rupees. So this will be the correct answer. 29240. तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं बेटा. 29240. Option A is correct. So option A will be the correct answer. So question number 65 is here. Question number 65 क्या कह रहा है कि a webinar has the intervals of 5 minutes each. Webinar क्या होता है देखो हमारा ऑनलाइन जो सेमिनार्स चलते हैं the seminars which are held on the web. वेब मतलब आप इंटरनेट पे समझ सकते हो. जो इंटरनेट पे सेमिनार्स होते हैं जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में ऑफलाइन सेमिनार्स होते हैं. तो आजकल बिकॉज ऑफ कोविड सेशन और आपको क्या होने लगे हैं वेबिनार होने लगे हैं. तो वेबिनार में क्या होता है बेटा ब्रेक मिलता है आपको. तो कुछ टाइम का ब्रेक इंटरवल मिला है दैट इज 5 मिनट ईच. तो ऐसे कितने इंटरवल्स मिले हैं. वेबिनार हैज 3 इंटरवल्स. उसमें क्या थे 3 इंटरवल्स थे और 1 इंटरवल की टाइमिंग जो है वो कितनी है 5 मिनट. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सेकंड्स में जो इंटरवल थे वो कितने थे. तो 1 इंटरवल की ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास 5 मिनट्स. तो वी कैन राइट हियर द ड्यूरेशन ऑफ 1 इंटरवल इज इक्वल टू कितना है 5 मिनट्स. और ऐसे कितने इंटरवल्स हुए 3 इंटरवल्स हुए. तो नंबर ऑफ इंटरवल्स विल बी इक्वल टू 3. So how many seconds will be there of the total time duration? The time duration of the webinar कितना रहा होगा. वेबिनार का जो इंटरवल का टाइम ड्यूरेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 15 मिनट्स का इंटरवल रहा होगा. तो 15 मिनट्स को बेटा सेकंड में चेंज कर लेंगे. एज वी ऑल नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. So we will multiply 5 multiply by 3 multiply by 60. So 5 3 is 15. So 15 multiplied by 60 that will be equal to 900 seconds. तो इंटरवल जो टाइम गैप रहा होगा वो कितने का रहा होगा 900 seconds का. So 900 second option C is here. Option C is correct. Question number 66. You can also join our 1-year school program of the Career Defense School and you can join daily 10 hours classes. We prepare for the Senic School, RMS papers, RIMC, Gurukul and GNV. Free education every year. For the free education applies scholarship test. इसके लिए बेटा आपको scholarship test देना होता है. हमारे स्कूल में जो है ना free education provide की जाती है. And the morning timings are 8 AM to 2 PM and evening timings are 2 PM to 4 PM. Physical training is also available here and 4 PM to 7 PM. Night classes are also available 8 PM to 10 PM और competition syllabus के हिसाब से नाइट क्लासेस देते हैं. So free unlimited weekly online test practice are also there. Free complete online classes, 3,000 plus videos and 40 sold papers. Free 15 book set. So for any query you can call us on the given number that is 74199 and 99228.
what must be added to? So next question is question number 66. What must be added to 2.4624 to get 6.785? आपको इस नंबर के अंदर क्या ऐड करना होगा सच दैट आपको ये वाला नंबर मिल जाए? तो बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x शुड बी एडेड एंड x को हम फाइंड आउट करना है, तो सेकंड वैल्यू को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और वो क्या हो जाएगी हमारी माइनस की हो जाएगी. तो लेट x शुड बी एडेड, हमने सपोज कर लिया कि x नंबर को जो है इसमें ऐड किया जाए. तो 2.4624 था हमारे पास एंड x को हमने ऐड किया, तो आना कितना चाहिए उस नंबर को ऐड करके 6.785 आना चाहिए. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर. 6.785 है, इसके लास्ट में हम जीरो प्लेस कर सकते हैं एंड 2.4624 इज हियर. वी विल सब्ट्रैक्ट दिस बिकॉज ये जब हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का. So 10 minus 4 is equal to 6. Here it will become 4. 4 minus 2 is equal to 2. 8 minus 6 is equal to 2. 7 minus 4, 3. 6 minus 2, 4. So क्या नंबर हमें ऐड करना होगा? 4.3226. So x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4.3226. ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा फटाफट से. जल्दी से ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्या था, सही था. तो 4.3226, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट. तो जिन भी बच्चों ने हमारा ऑप्शन सी लगाया उनका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है. LCM and HCF of the two numbers is 322. If one of the number is 23, what is the other? LCM and HCF के चैप्टर में आपको एक बात बताई गई थी कि the product of LCM and HCF are the product of two numbers. दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? उनके LCM और उनके HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. तो LCM into HCF हमारे पास गिवन है कितना, 322. So we can write here 322 and first number multiply by second number. तो first number is given, that is equal to one number given है हमारे को कितना, 23. तो second number की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो second number will be equal to LCM into HCF upon first number. तो 23 जो है हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड. तो बेटा हम इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे. सो 23 बन जाए 23 एंड माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 9 एंड हियर विल बिकम 2. 23 को 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 92. So the second number will be equal to 14. So 14 is the right answer. Option B. Option B is the correct answer, that is 14. So let us move to the next question, question number 68. And 68 question says that 76,04,083 is written as इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो बेटा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है इसको. तो कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा? तो 76 लाख बनाना है बेटा हमारे को. तो 76 लाख एंड 4000 बनाना है. तो 4000 के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, 76 लाख है तो हमारे पास 1 2 3 इसमें 40 लाख दिखा रखा है एंड दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. एंड 4 के बाद बेटा 1000 है, 4083. तो इट option number C is saying that 483. So this is also incorrect. So option D is the correct. International number system के according लिखना था तो option D will be the correct. 7604083. So 76 lakh 4083. Next question is here. So question number 69. Prisha weighs 42 kg and Kyra weighs 39.5 kg. What is their total weight? आपको क्या बताना है कि जो प्रीशा है उनका वेट कितना है हमारे पास. तो वेट ऑफ प्रीशा इज इक्वल टू 42 kg एंड वेट ऑफ कायरा इज इक्वल टू 39.5 kg. तो टोटल वेट बताना है बेटा दोनों का. तो टोटल वेट में क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. वी विल ऐड 2.5 and 9 and 2 11, 1 carry 1, 4 and 1 5, 5 and 3 8. So 81.5 kg. यहाँ से बेटा हमारे पास ऐड करके कितना आ रहा है 81.5 kg. But you can see that the options are in the grams. So we will convert it into the grams and 1 kilogram is equal to 1000 grams. So 81.500
it will be the correct answer. So 81500 gram will be the right answer. So option number C is correct. Question number 70. 70 question says that an athlete finish 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड्स. क्या कह रहा है, एक एथलीट है जो कि अपनी रेस को 400 मीटर में कवर करता है. कितने टाइम में कवर करता है? 400 मीटर की रेस को 48 सेकेंड्स में कवर करता है. हाउ मेनी सेकेंड्स हैज ही स्पेंड इन रनिंग. वो कह रहा है उसने रनिंग में कितना टाइम स्पेंड किया होगा अगर उसने सेम स्पीड से सेम ट्रैक पे 5 टाइम्स राउंड लगाए. ठीक है, तो बेटा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है हमारे पास. मीटर में हमारे को डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है किसमें? सेकंड्स में. तो हम क्या कर लेंगे, वहां से पहले स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द स्पीड एंड देन वी विल गो टू द सेम स्पीड. उसी स्पीड से हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स उसकी ट्रैक को फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस को. सो लेट मी सॉल्व इट इन द सॉल्यूशन स्लाइड. देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो स्टेटमेंट वाज दैट द 400 मीटर ट्रैक. तो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं हम बेटा. स्पीड क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना गिवन था, वो कितने मीटर का ट्रैक कवर करता था? 400 मीटर का. और कितने टाइम में ट्रेवल करता था? 48 सेकेंड्स में. तो वी कैन फाइंड द स्पीड फ्रॉम हियर. 4 से कट कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 100. एंड यहाँ पे 4 से कट करेंगे, कितना आएगा? 12. अगेन इसकी कटिंग हम कर सकते हैं किस पे? 3 पे, ओ सॉरी 4 पे. 4 3 जा 12 एंड 4 25 जा. तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ गई बेटा कितनी? 25 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड हमने स्पीड निकाली. अब उसने क्या बोला था कि वही सेम स्पीड से वो कितने ट्रैक्स कवर करता है? 5 टाइम्स ट्रैक कवर करता है. तो वन ट्रैक की जो बेटा लेंथ है वो कितनी है? 400 मीटर. तो हमें क्या बताना था कितने टाइम में कर लेगा. सो वी हैव टू फाइंड द टाइम. तो टाइम क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर के. बट 400 मीटर के वो 5 ट्रैक्स कवर करता है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 5 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिवाइड बाय द स्पीड. तो स्पीड कितनी है बेटा हमारे पास? 25 अपॉन 3. एंड जो अपॉन में 3 आएगा ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. दिस विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 80 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल आता है? 250 सेकेंड्स के इक्वल आता है. बट क्वेश्चन में तो क्या पूछा था? हाउ मेनी मिनट्स. तो आपको बेटा सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में. तो 60 सेकंड्स जो होते हैं वो 1 मिनट के इक्वल होते हैं. तो 240 सेकंड इसके इक्वल होंगे. 240 डिवाइड करेंगे जिससे 60 से. तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24. तो आंसर कितना आ जाएगा वहां से हमारे पास? 4 मिनट्स. तो चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए क्या कह रहा है हमारा? 4 minutes is the right answer. 4 minutes. चलिए let us move to the question number 71. 71 and 75 क्वेश्चंस के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बेटा. द फॉलोइंग ग्राफ, दिस इज अ बार ग्राफ. तो बेटा बार ग्राफ आया था हमारे पास पेपर में. और बार ग्राफ जो होता है वेरी इजी होता है, लेकिन आपको वैल्यूज को उसमें फाइंड आउट करना है, वो थोड़ा सा आपका टफ होता है. अगर वन टाइम यू फाइंड द वैल्यूज तो आपके क्वेश्चन सारे क्या हो जाते हैं? इजी हो जाते हैं, अगर आप करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमारा क्वेश्चन 71 एंड 75 के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज टेकन बाय द ग्रेड 5 स्टूडेंट्स इन द पर्टिकुलर स्कूल. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको क्या बताना है कि ये स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे. तो बेटा ग्राफ से पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं. तो डिबेट है एंड थिएटर में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग में करते हैं, कुछ डांस में, कुछ पेंटिंग में करते हैं. तो ये हमारा बाउंड्री को पूरा टच हो रहा है डिबेट वाला. तो डिबेट की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी? 15. एंड थिएटर की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखिए 10 से थोड़ा सा अबव चले तो 11 आना चाहिए, बट ये थोड़ा और ज्यादा है उससे. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12. ये आप देख रहे होंगे बाउंड्री से थोड़ा सा अप है, तो 15 में 1 ऐड कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा? 16. इसको भी हम 11 ले सकते थे, बट ये बाउंड्री के बहुत नियर बाय होता. तो जैसे कि ये है पेंटिंग वाला पोर्शन, तो पेंटिंग वाले पोर्शन से तो थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, ये बाउंड्री से थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है, तो 2 आप ले सकते हैं हम इसको. तो दिस विल बी द थिएटर में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे.
और आपके स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ये भी 20 से थोड़ा आप चलते तो यहाँ पे 21 आता, बट थोड़ा सा और अप गया है ये, तो दिस विल बी इक्वल टू 22. वन टाइम यू विल करेक्ट द वैल्यूज, द आंसर विल बी करेक्ट. सो डांसिंग में कितना है बेटा हमारे पास 15, 15 के बाद कितना आता है 16, 17, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 18. सो ये 17 से भी थोड़ा सा अप जा रहा है ऊपर. तो अब आपको वैल्यूज पता चल गई हैं. डिबेट के कितने हैं 15, डिबेट के कितने स्टूडेंट्स हैं 15, 15 स्टूडेंट्स ने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था. उसके बाद है हमारे 12 स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे 22, फिर 18 एंड देन पेंटिंग में कितने हैं 16. So the question number 71 is that how many more students choose swimming as compared to debate. वो कह रहा है डिबेट में कितने एज कंपेयर टू डिबेट, डिबेट से कंपेयर करते हुए स्विमिंग में कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. तो आपको बता देना है डिबेट में हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे 15 स्टूडेंट्स थे, और 15 स्टूडेंट्स हमारे किसमें थे डिबेट में. और आपको स्विमिंग के देखने हैं तो स्विमिंग में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे 22. तो 22 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 7. तो 7 स्टूडेंट्स जो है एज कंपेयर टू डिबेट जो है वो ज्यादा स्विमिंग में जाते हैं. तो 7 स्टूडेंट्स. So let us move to the question number 72. Question number 72 says that how many students choose dance. तो बेटा डांस कितने स्टूडेंट्स चूज कर रहे थे हमने देखा था 18 स्टूडेंट्स वर चूजिंग एज डांस. तो 18 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. So next question number 73. How many students were there in two least popular activities? तो least popular यानी जिन पे बहुत कम जो लोग लाइक करते थे. तो least popular आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास least popular कौन कौन आएगा. एक तो हमारे पास आएंगे डिबेट वाले और एक आएंगे थिएटर वाले. ये जो लीस्ट है ना डिबेट, डिबेट में 15 है, यहाँ पे 12 है, और पेंटिंग में तो हमारे पास 15 से अप थे तो ये नहीं आएगा यहाँ पे. तो 15 प्लस 12 कितने आ जाएंगे 27. तो 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लीस्ट पॉपुलर यानी इतनी एक्टिविटीज में कोई नहीं जाता है. तो 27 इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 15 प्लस 12. लीस्ट पॉपुलर मीन्स जिसका ग्राफ जो है सबसे नीचा होगा, सबसे लो होगा, वही हमारी लीस्ट पॉपुलर होगी. So question number 74 is that what is the total number of students in grade 5? तो ग्रेड 5 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं. एक तो डिबेट के हो जाएंगे, सब स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे. तो डिबेट में हमारे पास 15 थे, थिएटर में कितने स्टूडेंट्स थे 12, स्विमिंग में कितने स्टूडेंट्स थे 22, और डांस में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास 18, और पेंटिंग में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास 16. तो हम ऐड कर लेंगे बेटा सबको. हमारे पास 15 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 16. तो ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा यहाँ से 6 plus 8 14, 14 over 16, 16 and 2 18, 18 and 5 23. So 3 is here and 2 will be the carry. 2 and 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 and 1 7, 7 and 1 8. So 83 students are total. So total number of students in grade 5 कितने हैं 83. So the last question of the mathematics portion is the number of students who choose painting is dash more than the number of students who choose theater. वो कह रहा है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पेंटिंग चूज करते थे और वो कितना ज्यादा है थिएटर वालों से. तो पेंटिंग के स्टूडेंट्स कितने ज्यादा हैं थिएटर से. तो पहले हमें पेंटिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में हमने पेंटिंग की वैल्यू डिस्कस की थी कि पेंटिंग लाइक करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 16 स्टूडेंट्स हैं. और द स्टूडेंट्स हु चूज थिएटर, थिएटर चूज करने वाले कितने स्टूडेंट्स थे 12 स्टूडेंट्स थे. तो आपको बताना है कि पेंटिंग वाले कितने ज्यादा हैं. तो पेंटिंग वाले आपको नजर आ रहे हैं दे आर 16 एंड थिएटर वाले 12 हैं. तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर. तो 16 minus 12 that is equal to 4 students are there. So 4. Option number D is right. 4 students. 16 minus 12. Clear? So we are completed with the portion of mathematics. And thank you to all of you for watching this video and hope so बेटा आप सबका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा. ऑन पेपर जो था क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी था हमारे पास
और maximum questions are there which we have done in the class. So this shows that कि आपको जो career defense school की जो classes हैं that are much beneficiary for you because so many of the students have said that the question paper are very vast, very easy, and the whole questions we have discussed in our class sessions. So thank you and have a nice day and all the best for the better results. आपकी hopes हो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है और आपको आपके रिजल्ट के लिए बहुत सारी गुड विशेस एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।